Chalo, let it be once again. Good morning, each and everyone. Welcome you all. Today we are going to see some important topic from the chapter inheritance and variation. आज के लेक्चर में हम देखेंगे today's topic. We are going to cover a sex link inheritance. आज हम देखेंगे sex link inheritance देखेंगे. And we are going to study about the different example of sex link inheritance. For example, इसमें हम देखेंगे Y-linked genes or Hollandric genes, and then we are going to study some example like color blindness and hemophilia. After finishing this, we are going to study about sex determination in a different organism. Sex determination देखेंगे. तो आज के लेक्चर में हमको sex determination कंप्लीट करना है, sex link inheritance कंप्लीट करना है. वेट ओनली फॉर 1 मिनट. कोई तो भी जुड़ा है हमारे साथ, उसको ज्वाइन कर लेते हैं. पल्लवी वेलकम. स्क्रीन इज विजिबल ऑन योर मोबाइल. Yes, sir. Yes, sir. तो सबसे पहले जान लेते हैं सेक्स लिंक इनहेरिटेंस क्या है. व्हाट इज अ सेक्स लिंक इनहेरिटेंस. अभी हमको पता है सेक्स लिंक जीन्स क्या होते हैं. कौन बोलेगा सेक्स लिंक जीन्स क्या होते हैं? हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट द सेक्स लिंक जीन्स? Genes located on the non-homologous region of sex chromosomes are called as sex-linked genes. नाइस. तो देखो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, in a human being, 2 sex chromosomes are there in the 23rd pair, one X and one Y. X chromosome कैसा है? The X chromosome is a metacentric. ये X है और ये क्या है? Y chromosome है. X chromosome कैसा है? Metacentric है, and this Y chromosome is a acrocentric. Now the dissimilar region of X and Y chromosome. तो ये जो रीजन है ये क्या है? डिसिमिलर रीजन है X और Y क्रोमोसोम का. इसको हम कहेंगे नॉन होमोलॉगस region of sex chromosome. Now those genes are present on non-homologous region of X and Y chromosome. Genes located on non-homologous part of sex chromosome but not involved in the determination of sex. तो those genes present on non-homologous part, कौन से पार्ट के ऊपर है? non-homologous part of sex chromosome. sex chromosome का काम क्या है? Determination of sex of an given individual. So these are the genes those are present on the non-homologous part of sex chromosome but not involved in determination of sex. Not involved in determination of sex. Such genes are called as, उस genes को हम क्या कहेंगे? Such genes are called as sex link genes. इस genes को हम कहेंगे sex link genes. Normally, body characters are controlled by sex-linked genes are called as sex-linked traits. Those body characters are controlled by these sex-linked genes. They are called as, उनको हम क्या कहेंगे? sex-linked traits कहेंगे. sex-linked traits. तो इधर हमको 2 डेफिनेशन मिल गई, एक sex-linked traits की और दूसरी किसकी मिली हमको डेफिनेशन? sex-linked gene की. Those genes are controlling body character but present on a non-homologous region of sex chromosome. Is it clear? They are not concerned with the determination of sex. So such genes are called as sex-linked genes, and the body characters those who are under control of these sex-linked genes, they are called as sex-linked traits. Now the inheritance or transmission of these sex-linked genes from one generation to next generation. So these phenomena of their inheritance from one generation to next generation, that is called as, उसका जो inheritance है, inheritance यानी क्या? heredity. तो inheritance of these sex linked traits or sex linked genes is called as, this phenomenon is called as what? Sex link inheritance, or it is also called as sex linkage. ये हमने पहले लेक्चर में देखा था, complete sex linkage, incomplete sex linkage. Now
The sex-linked genes are of two types. Those genes are present on the non-homologous part of X chromosome. For example, इधर मैं लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5. तो those genes are present on the non-homologous part of X chromosome. Their alleles are altogether absent on the non-homologous part of Y chromosome. Y chromosome के non-homologous region के ऊपर इसके allele होंगे क्या 1, 2, 3, 4, 5 क्या नहीं होंगे. तो इसमें क्या होगा A, B, C. This is only for understanding. I had taken these are 1, 2, 3, 4, 5 and ABC. Such names of the gene. So those genes are present on the non-homologous part of X chromosome. Its allele are all together absent on the non-homologous region of Y chromosome. And Y chromosome के ऊपर जो genes है non-homologous part के ऊपर उसके allele X के non-homologous region के ऊपर क्या रहेंगे absent रहेंगे. Is it clear? तो non-homologous region never carry similar gene. ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. Is it clear? Got it? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Now the sex link genes are of two types. पहले हम देखेंगे X link genes और they are also called as sex link genes. अभी sex link genes और X link genes क्या है? X यानी X chromosome. Those genes are present on the non-homologous part of X chromosome. X chromosome के non-homologous part के ऊपर जो genes हैं तो these genes are called as X link genes. X link genes are present on non-homologous part of X chromosome. तो non-homologous part of X chromosome के ऊपर जो genes है they are called as X link genes और sex link genes. तो X link genes have no corresponding allele on Y chromosome. Y chromosome allele होगे क्या नहीं होगे. The recessive sex link gene human. अभी अगर इधर कोई recessive sex link gene है the recessive sex link gene in human is responsible for formation of sex link trait. तो recessive sex link gene in the human is responsible for formation of sex link trait. तो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है एक मिनट. एग्जाम्पल ऑफ एक्स लिंक और सेक्स लिंक जीन्स क्या है? कलर ब्लाइंडनेस, इसके बाद मायोपिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, नाइट ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया एक्सेट्रा. तो इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है मेरे प्यारे बच्चों. एक्स लिंक जीन्स के ऊपर राइट अ नोट ऑन एक्स लिंक जीन और सेक्स लिंक जीन. इज क्लियर? तो दीज आर द इंपॉर्टेंट एग्जांपल. इसके ऊपर एमसीक्यू भी आ सकता है. कलर ब्लाइंडनेस, मायोपिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, नाइट ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया एक्सेट्रा. वेट फॉर 1 मिनट. समवन हैज गेट ज्वाइन, उसको ज्वाइन कर लेते हैं. चलो तो देखो सेक्स लिंक जीन्स क्या है? सेक्स लिंक जीन्स जीन्स लोकेटेड ऑन द नॉन होमोलस रीजन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम. सेक्स क्रोमोसोम दो तरह के, एक्स एंड वाई. एक्स के ऊपर अगर वो जीन्स हैं तो उसको हम कहेंगे एक्स लिंक. एंड इफ दी जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द नॉन होमोलस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम उसको हम कहेंगे वाई लिंक. इज क्लियर? तो बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ जीन ऑन द गिवन सेक्स क्रोमोसोम दे आर ऑफ टू टाइप्स. एक genes are also called as sex linked genes and दूसरे क्या है? Y linked genes. Y linked genes are also called as what? Hollandric genes. इनको हम क्या कहते हैं? Hollandric genes कहते हैं. Hollandric genes यानी क्या? These are the genes present on the non-homologous region of Y chromosome. Is it clear? तो अभी देखें आगे X link के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे. Here I'll add one slide. Now see here. Now ये जो एक्स लिंक जीन्स हैं, एक्स लिंक जीन्स, अभी फीमेल के पास क्या है? फीमेल्स आर हैविंग 2x क्रोमोसोम. इनके पास क्या है? 2x क्रोमोसोम है. तो फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेक्स लिंक ट्रेट इन अ फीमेल हमको कितने रेसेसिव जीन की जरूरत होगी?
how many recessive genes are required for formation of sex linked trait in a female human being? फीमेल्स आर हैविंग अ 2x क्रोमोसोम. अगर 2x क्रोमोसोम एक्स लिंक जीन कब एक्सप्रेस होते हैं? दे हैज गेट एक्सप्रेस इन अ रेसेसिव कंडीशन. तो रेसेसिव कंडीशन देखो मैंने अभी बताया था, क्या बताया था अभी? द रेसेसिव सेक्स लिंक जीन इन ह्यूमन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स लिंक कैरेक्टर. तो रेसेसिव सेक्स लिंक जीन्स क्या है? रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेक्स लिंक ट्रेट. अगर फीमेल के पास 2x क्रोमोसोम है तो कितने रेसेसिव अलील नहीं तो जीन्स लगेंगे? तो इट देयर इज अ नीड ऑफ 2 रेसेसिव जीन्स. तो फॉर फॉर्मेशन और एक्सप्रेशन ऑफ एक्स लिंक ट्रेट इन अ फीमेल ह्यूमन बीइंग 2 सेक्स लिंक रेसेसिव जीन्स आर रिक्वायर्ड. कितने लगेंगे? 2. अगर मेल है, इफ द गिवन ह्यूमन बीइंग इज अ मेल, तो अगर मेल के पास क्या है? एक एक्स क्रोमोसोम है और दूसरा क्या है? वाई क्रोमोसोम है. इज इट क्लियर? तो मेल के पास क्या है? एक एक्स और एक वाई. तो इन अ मेल ओनली वन, मेल में क्या लगेगा? ओनली वन रेसेसिव जीन इज सफिशिएंट टू डेवलप एक्स लिंक ट्रेट. एक्स लिंक ट्रेट. वाई? नॉर्मली मेंडल ने क्या बताया था कि फॉर फॉर्मेशन ऑफ ईच एंड एवरी कैरेक्टर अ पेयर ऑफ जीन्स आर रिक्वायर्ड. बट नाउ हियर द जीन विच इज प्रेजेंट ऑन द नॉन होमोलॉगस पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन अ मेल ह्यूमन बीइंग, फॉर एग्जांपल एक्स स्मॉल सी, ये क्या है? जीन है. इट इज प्रेजेंट ऑन द नॉन होमोलॉगस पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम. बट दिस रेसेसिव जीन एक्स स्मॉल सी, इसका अलील वाई क्रोमोसोम के ऊपर क्या है? एब्सेंट है. इज इट क्लियर? तो ओनली ड्यू टू दिस रीजन ओनली वन रेसेसिव जीन is sufficient to develop a X-linked trait in a male human being. In a male human being. All are understanding? Yes or no? Yes, sir. फीमेल में क्या होता है? 2 recessive genes are required for formation of sex-linked trait, and very rarely 2 recessive genes come on a 2x chromosome in female human being. इफ द फीमेल ह्यूमन बीइंग, अगर मेरे पास एक इंडिविजुअल है फीमेल, इफ आई एम हैविंग वन फीमेल इंडिविजुअल, तो फीमेल इंडिविजुअल के पास क्या है? 2x क्रोमोसोम है. इफ बाय मिस्टेक, तो वेरी रेयरली क्या होता है? 2 रेसेसिव जीन एक्स क्रोमोसोम के ऊपर आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल एक्स स्मॉल सी, एक्स स्मॉल सी. हियर आई एम राइटिंग स्मॉल सी फॉर रेसेसिव जीन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस. तो स्मॉल सी इधर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कलर ब्लाइंडनेस का रेसेसिव जीन. तो वेरी रेयरली बोथ द रेसेसिव जीन्स small c they come together on a 2x chromosome. If the both the recessive genes come together on a 2x chromosome, then that a female human being is going to show that a X-linked trait, that is a color blindness. तो ये इंडिविजुअल क्या होगा? कलर ब्लाइंड फीमेल होगा. इज क्लियर? इफ द फीमेल इज हैविंग वन डोमिनेंट जीन एंड वन रेसेसिव जीन, अगर फीमेल के पास 2x क्रोमोसोम है, तो हियर आई एम राइटिंग अ 2 टाइम x. व्हाई? टू शो द 2x क्रोमोसोम व्हिच आर प्रेजेंट इन अ 23rd पेयर. तो इफ वन डोमिनेंट जीन इज प्रेजेंट ऑन वन x क्रोमोसोम एंड दूसरे x क्रोमोसोम के ऊपर क्या है? रेसेसिव जीन है. इज क्लियर? इफ द इंडिविजुअल इज हैविंग वन डोमिनेंट एंड वन रेसेसिव जीन, इसको हम क्या कहेंगे? कैरियर कहेंगे. इसको हम क्या कहेंगे? कैरियर. तो दोज इंडिविजुअल्स आर हैविंग वन डोमिनेंट and one recessive gene together, तो उसको हम कहते हैं कैरियर. कैरियर क्या रहता है? कैरियर इज फिनोटाइपिकली नॉर्मल. ये फिनोटाइपिकली क्या है? यानी अगर आप इसके आंख देखोगे इसकी, तो इसकी आंखें कैसी होगी? नॉर्मल होगी. फिनोटाइपिकली शी इज नॉर्मल, बट शी इज कैरिंग वन फॉल्टी जीन विथ हर. वो क्या कैरी कर रही है? एक फॉल्टी जीन को कैरी कर रही. शी इज गोइंग टू कैरी वन फॉल्टी जीन and therefore she is called as a carrier. उसीलिए हमने उसको क्या कहा है? इसीलिए हमने इसको कहा है कैरियर. तो ये है फॉल्टी जीन. तो दिस इज अ फॉल्टी जीन. तो इधर लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल है. द डोमिनेंट जीन इज रेसेसिव जीन. नाउ फिनोटाइपिकली ये क्या है? नॉर्मल है, बट शी इज अ कैरिंग वन फॉल्टी जीन, देयरफॉर शी इज कॉल्ड एज अ कैरियर. इज दिस क्लियर? इज इट क्लियर? यस और नो?
Yes, sir. ओनली फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, कोई तो भी जुड़ा है? Yes, sir. Yes, sir. तो मेल में क्या है? तो इन अ मेल ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट, मेल ह्यूमन बीइंग में क्या है? मेल ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट 1x एंड 1y क्रोमोसोम। तो मेल ह्यूमन बीइंग में फॉर फॉर्मेशन ऑफ एक्स लिंक ट्रेट ओनली वन रेसेसिव जीन इज सफिशिएंट। फॉर एग्जांपल मेल के एक्स क्रोमोसोम के ऊपर क्या है? एक्स स्मॉल सी, दिस इज द रेसेसिव जीन। ये क्या है? दिस इज द रेसेसिव जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस। एंड इसका अलील इधर है क्या? नहीं है। तो द अलील फॉर दिस कलर ब्लाइंडनेस is altogether absent on Y chromosome. Is it clear? So therefore only one recessive gene is sufficient to develop X-linked trait in a male human being. So male human being require only one recessive gene to develop a X-linked trait, and that's why the X-linked trait, ये statement आप याद रखो, and therefore the X-linked traits are more frequently appear in a male human being than a female human being. So X-linked traits are more frequently appear in a male human being than फीमेल ह्यूमन बीइंग। इज क्लियर? तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई एक्स लिंक ट्रेट्स आर मोर फ्रिक्वेंटली अपीयर इन अ मेल ह्यूमन बीइंग देन द फीमेल ह्यूमन बीइंग। तो ये रीजन आएगा क्योंकि मेल के पास क्या है? ओनली वन एक्स क्रोमोसोम है, और ये जो एक्स लिंक ट्रेट के जीन्स होते हैं, एक्स लिंक जीन्स, दे आर ओनली प्रेजेंट ऑन द नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। उसका अलील वाई के ऊपर क्या है? एब्सेंट है। इज क्लियर? तो दिस इज अबाउट द एक्स लिंक जीन। Is it clear? Got it? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट टॉपिक इज द वाई लिंक जीन। अगला टॉपिक क्या है? वाई लिंक जीन्स। अभी वाई लिंक जीन्स का डेफिनेशन कौन बताएगा मेरे को? हु इज गोइंग टू टेल मी द वाई लिंक जीन्स? डेफिनेशन चाहिए मेरे को। आई वांट अ डेफिनेशन। बोलो। Genes located on non-homologous region of Y chromosome. Yeah, those genes are present on non-homologous region of Y chromosome. They are called as Y-linked genes. They are also called as, or it is also called as what? Hollandric genes. इनको हम क्या कहेंगे? Hollandric genes कहेंगे। Is it clear? तो ये एक नाम याद रखो। The Y-linked genes are also called as क्या? Hollandric genes. फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल बता देता हूं। इधर एग्जाम्पल क्या है? देखो, एग्जाम्पल इज हाइपरट्राइकोसिस। व्हाट इज द सिम्टम ऑफ हाइपरट्राइकोसिस? तो दोज इंडिविजुअल्स आर हैविंग अ डोमिनेंट जीन फॉर हाइपरट्राइकोसिस। इज इट क्लियर? तो दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस एक्सेस हेयर ऑन एक्सटर्नल ईयर। एक्सेस, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस हेयर ऑन पिन्ना। पिन्ना क्या रहता है? कान रहता है। तो ये अगर कान है कोई बंदे का, तो ये तो एलियन ही दिख रहा है। नहीं, ये हम रब कर देते हैं। मेल बनाना है ना। तो ये कान है इसका। चलो, ये इसके बाल है। तो एक्सेस हेयर ऑन द एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना। तो ये क्या है? दिस वन इज द पिन्ना, एक्सटर्नल ईयर। इसके ऊपर क्या है? बहुत सारे हेयर है। तो दिस कैरेक्टर इज कॉल्ड एज हाइपरट्राइकोसिस। तो हाइपरट्राइकोसिस, दिस कैरेक्टर इज ओनली
प्रेजेंट इन अ मेल ह्यूमन बीइंग, ये कैरेक्टर कहाँ होगा, सिर्फ मेल में होगा. वाई दिस कैरेक्टर इज ओनली सीन इन अ मेल ह्यूमन बीइंग, बिकॉज इट्स अ जीन इज अ प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम. इसका जीन किसके ऊपर है, वाई क्रोमोसोम के ऊपर है ना. एंड वाई क्रोमोसोम इज ऑल टुगेदर एब्सेंट इन अ मेल फीमेल ह्यूमन बीइंग. वाई क्रोमोसोम फीमेल में होता है क्या, नहीं होता है. तो दिस वाई क्रोमोसोम पासेस फ्रॉम फादर टू हिज सन डायरेक्टली. तो फादर से ये क्या होगा, दिस वाई क्रोमोसोम along with this gene that is for hypertrichosis, it is a passes straight forward to his son. Is it clear? तो Y linked genes they are going to show straight inheritance. वो क्या दिखाते हैं, straight inheritance दिखाते हैं. ये एक चीज याद रखो, Y linked genes are showing a straight inheritance, whereas X linked genes क्या दिखाते हैं, X linked genes are showing a crisscross inheritance. Why? Because X gene, X chromosome, तो X क्रोमोसोम इज प्रेजेंट बोथ इन मेल एंड फीमेल ह्यूमन बीइंग. तो फीमेल से वो मेल के पास भी आ सकता है, मेल से फीमेल के पास भी जा सकता है. इज इट क्लियर? तो X लिंक जीन्स दे आर शोइंग अ zigzag पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस. फादर टू डॉटर, डॉटर टू ग्रैंडसन, ग्रैंडसन से आगे जाएगा फिर से डॉटर के पास, डॉटर से आगे जाएगा फिर से सन के पास. तो X लिंक जीन्स जो रहते हैं दे आर शोइंग अ zigzag पैटर्न. X लिंक जीन्स, ये एक चीज याद रखो, X लिंक जीन्स आर शोइंग क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. वो क्या दिखाते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखाते हैं. इज इट क्लियर? व्हाई? बिकॉज X लिंक जीन इज प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल ह्यूमन बीइंग, whereas Y लिंक जीन्स, ये जो Y लिंक जीन्स है दे आर शोइंग विच पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, दे आर शोइंग स्ट्रेट inheritance. Is this clear? Got it? Yes or no? Yes, sir. चलो, तो अभी हम देखेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल विच इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जाम्पल विच इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक, दैट इज अ कलर ब्लाइंडनेस. अभी व्हाट इज कलर ब्लाइंडनेस? कलर ब्लाइंडनेस ये क्या है, इट इज एक्स लिंक रेसेसिव क्या है, डिसीज है और डिसऑर्डर है. तो दोज इंडिविजुअल्स आर सफरिंग फ्रॉम दिस कलर ब्लाइंडनेस डिसीज. जो इंडिविजुअल में ये कलर ब्लाइंडनेस डिसीज हमको दिखाई देता है, ये क्यों डेवलप हुआ है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स लिंक रेसेसिव जीन. तो एक्स लिंक रेसेसिव जीन यानी फॉर कलर ब्लाइंडनेस दैट पर्सन इज हैविंग either one or two recessive gene for color blindness. Those individuals are suffering from color blindness. They cannot able to differentiate between a red and a green color. They cannot able to differentiate between red and green color. अभी आपको दोनों कलर दिखाई दे रहे हैं, रेड ग्रीन दिखाई दे रहा है. Yes or no? If you are finding Yes, sir. the identification of red and green color, so those individuals are suffering from color blindness. They cannot able to differentiate between a red and green color. दोनों कलर उनको क्या कैसे दिखाई देते हैं, बोथ कलर रेड एंड ग्रीन, बोथ कलर एपियर, उनके लिए दोनों कलर कैसे दिखाई देते हैं, बोथ कलर एपियर ग्रे. दोनों कलर उनको कैसे दिखाई देते हैं, ग्रे दिखाई देते हैं. इज इट क्लियर? तो ये जो कलर ब्लाइंडनेस है इट इज डेवलप ड्यू टू रेसेसिव एक्स लिंक जीन. ये क्यों डेवलप हो रहा है, इट इज डेवलप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेसेसिव. तो कौन सा जीन है, रेसेसिव जीन है. कौन किधर है, रेसेसिव एक्स लिंक जीन, एंड इट इज प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम. और वो कैसा है, रेसेसिव है. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेसेसिव एक्स लिंक जीन द इंडिविजुअल इज सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस. एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर. या तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेसेसिव एक्स लिंक जीन द इंडिविजुअल इज सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस. नाउ अगर उसके पास रेसेसिव जीन है, फॉर एग्जांपल एक्स स्मॉल सी, अगर मैंने कंसीडर किया एक्स स्मॉल सी क्या है, एक्स क्यों लिखा है, बिकॉज दिस स्मॉल सी क्या है, रेसेसिव जीन है विच इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम. इज क्लियर? तो एक्स स्मॉल सी, इफ वी कंसीडर एक्स स्मॉल सी एज अ रेसेसिव जीन एंड एक्स कैपिटल सी एज अ डोमिनेंट जीन. तो डोमिनेंट जीन क्या है, डोमिनेंट जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल विजन. डोमिनेंट जीन किसके लिए, नॉर्मल विजन के लिए. एंड रेसेसिव जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस. इधर तक समझ में आ गया है?
Sir, but why color blindness only about these two colors? हाँ, that I am going to tell you ना. Wait. Now, if the person, देखो, if the person is having a faulty gene, अगर पर्सन के पास क्या है, इफ द इंडिविजुअल इज हैविंग अ फॉल्टी जीन, तो फॉल्टी जीन क्या करता है, द फॉल्टी जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस, फॉल्टी यानी क्या, रेसेसिव जीन, द रेसेसिव जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस. तो इफ द इंडिविजुअल इज हैविंग अ रेसेसिव जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस, तो दिस रेसेसिव जीन क्या करता है, इट प्रिवेंट्स the formation of proper formation of color sensitive cell. It prevent the formation of color sensitive cells. Color sensitive cell जो present होते हैं in the retina of eye. Color sensitive cells that is a cones. वो क्या है, cones है. तो recessive gene prevent the formation of color sensitive cells that is a cone in the retina of eye. In the retina of eye. तो ये जो कलर सेंसिटिव सेल है ये प्रॉपरली डेवलप नहीं होते, एंड ड्यू टू इम्प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ दीज कलर सेंसिटिव सेल इन द रेटिना ऑफ आई, द पर्सन फेल टू डिफरेंशिएट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर. गॉट इट? समझ में आ गया? गॉट इट? Yes, sir. चलो, Yes, sir. तो जो मैंने अभी कहा था, क्या कहा था मैंने अभी, अगर मैंने कंसीडर किया एक्स कैपिटल सी क्या है, एक्स कैपिटल सी डोमिनेंट जीन है, एंड एक्स स्मॉल सी क्या है, रेसेसिव जीन है, देन द जीनोटाइप इन अ डिफरेंट इंडिविजुअल इज एज फॉलोज. तो देखो, ये एक चार्ट मैं लाया हूं आपके लिए. आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल दीज थिंग्स. ये हमने देख लिया है. हाँ देखो, इफ वी कंसिडर एक्स कैपिटल सी, अगर मैंने कंसिडर क्या किया, एक्स कैपिटल सी क्या है, डोमिनेंट जीन है, एंड इफ आई कंसिडर एक्स स्मॉल सी एज रेसेसिव जीन, देन द जीनोटाइप इन अ डिफरेंट इंडिविजुअल. तो मेल के पास क्या है, मेल के पास है एक एक्स और एक वाई, इधर एक एक्स और एक वाई. कैरियर मेल हो सकते हैं क्या, कैरियर किसको कहते हैं, दोज इंडिविजुअल्स आर हैविंग वन डोमिनेंट एंड वन रेसिव एलील. बट हम किसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, एक्स लिंक जीन्स के ऊपर. मेल के पास एक ही एक्स है ना, तो कैरियर बनने के लिए मेल को क्या करना पड़ेगा, दो एक्स एक साथ लाने पड़ेंगे. बट मेल के पास क्या है, एक ही एक्स है. तो एट ए टाइम ऑन अ सिंगल एक्स क्रोमोसोम एक डोमिनेंट और एक रेसिव जीन आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है. एंड दैट्स व्हाई द मेल्स आर नेवर कैरियर. तो मेल कैरियर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते. कैरियर किसको कहते हैं, दोज इंडिविजुअल्स आर हैविंग वन डोमिनेंट एंड वन रेसिव जीन्स टुगेदर. तो कैरियर बनने के लिए उसके पास कितने एक्स क्रोमोसोम होने जरूरी है, दो. इज इट क्लियर? तो मेल्स आर नेवर कैरियर. इफ द मेल इज अ नॉर्मल, तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर इसके पास क्या होगा, कैपिटल सी जीन होगा. इफ द मेल इज कलर ब्लाइंड, इसके ऊपर क्या होगा, स्मॉल सी होगा. फीमेल के पास क्या है, नॉर्मल होने के लिए उसके पास क्या है, दो डोमिनेंट जीन है, एक्स कैपिटल सी, एक्स कैपिटल सी. कलर ब्लाइंड फीमेल का जीनोटाइप क्या आएगा, एक्स स्मॉल सी, एक्स स्मॉल सी. और कैरियर का क्या आएगा, एक्स कैपिटल सी, एक्स स्मॉल सी. गॉट इट? या आपको समझ में आ गया? Yes, sir. आ गया? Yes, sir. चलो, तो इसका एक फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक. अभी हम स्टडी करने वाले क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. इसके ऊपर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ सकता है मेरे प्यारे बच्चों, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है. इफ देर इज एन मैरिज बिटवीन, अगर मैं क्या करूंगा, शादी करूंगा. इफ देर इज एन मैरिज बिटवीन अ कलर ब्लाइंड मेल, इफ देर इज एन मैरिज बिटवीन कलर ब्लाइंड मेल, इफ अ कलर ब्लाइंड मेल मैरी विथ अ नॉर्मल फीमेल, इफ अ कलर ब्लाइंड मेल विथ मैरी विथ अ नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल, तो ये हमारा हो गया फिनोटाइप. इधर मैं लिख देता हूं फिनोटाइप, ये आपको हर बार ऐसे लिखना है. इसके नीचे आएगा जीनोटाइप. तो व्हाट इज द जीनोटाइप फॉर कलर ब्लाइंड मेल, मेल के पास क्या है, एक एक्स और एक वाई है. फीमेल के पास क्या है, दो एक्स क्रोमोसोम है. अभी मैंने आपको अभी बताया था, क्या बताया था, कलर ब्लाइंड मेल का जीनोटाइप क्या आएगा, स्मॉल सी आएगा या कैपिटल सी आएगा.
तो इधर आएगा स्मॉल सी, इज क्लियर। Small c. और इधर क्या आएगा, 2 कैपिटल सी, इज क्लियर। मेल इज हैविंग 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम, तो मेल इज गोइंग टू प्रोड्यूस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स, मेल कितने गैमेट बनाएगा, 2 गैमेट्स बनाएगा ना, एक गैमेट में एक्स स्मॉल सी और दूसरे गैमेट में वाई, तो दीज आर द 2 गैमेट्स ऑफ मेल। फीमेल के पास क्या है, दोनों सिमिलर क्रोमोसोम है एक्स एक्स, और दोनों क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स भी कैसे सेम है, डोमिनेंट, तो शी इज गोइंग टू प्रोड्यूस ओनली 1 टाइप ऑफ गैमेट एक्स कैपिटल सी। व्हेन द गैमेट्स विल गेट अ फ्यूज, व्हेन द गैमेट्स विल गेट फ्यूज, तो F1 जनरेशन विल गेट अ प्रोड्यूस, F1 जनरेशन डेवलप हो जाएगा, तो F1 जनरेशन का जीनोटाइप क्या आएगा, एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी, तो आई एम गोइंग टू राइट अ कैपिटल डोमिनेंट जीन फर्स्ट, एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी, तो इसको हम क्या कहेंगे, व्हाट इज द फिनोटाइप फॉर दिस एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी, क्या आएगा फिनोटाइप, Carrier. या Carrier. शी इज अ कैरियर, व्हाई, तो कैरियर एक्स लिंक, कैरियर कौन रहते हैं हमेशा, कैरियर्स आर ओनली फीमेल, व्हाई, टू बिकम अ कैरियर शी रिक्वायर और दैट इंडिविजुअल रिक्वायर 1 डोमिनेंट एंड 1 रेसिव जीन, तो ये क्या है, कैरियर है। कैरियर फिनोटाइपिकली नॉर्मल है, इसकी विजन कैसी होगी, नॉर्मल होगी, इज क्लियर। तो इसके ऊपर भी एमसीक्यू आ सकता है, व्हाट इज द फिनोटाइप फॉर कैरियर फीमेल और कैरियर फॉर कलर ब्लाइंडनेस, तो उसका फिनोटाइप क्या आएगा, नॉर्मल विजन, और इधर क्या आएगा, एक्स कैपिटल सी वाई, तो इसका फिनोटाइप क्या आएगा, ये बना मेल, तो ये क्या होगा, नॉर्मल सन, ये क्या होगा, नॉर्मल सन, और ये है डॉटर, इज क्लियर, इधर तक समझ में आ गया, Yes, Yes, sir. sir. समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लो। अभी इन अ सेकंड जनरेशन इफ दिस अ कैरियर, अभी कैरियर को ये फॉल्टी जीन कहां से मिला है, ये समझ में ले लो, कैरियर को ये फॉल्टी जीन है, दिस इज द फॉल्टी जीन, नाउ दिस फॉल्टी जीन which is a present in this carrier, she got this faulty gene from what, from his mother or from her mother or father, किसके पास से मिला है, फॉल्टी जीन किसके पापा के पास था, From mother. ये मम्मी थी, मम्मी से कैसे मिला, मम्मी के पास क्या है, दोनों डोमिनेंट है ना, ये डोमिनेंट है ये डोमिनेंट है, फॉल्टी किसके पास है, फॉल्टी किसके पास था, Father. या, तो फॉल्टी जीन फादर के पास था, तो फॉल्टी जीन इधर से ऐसे ट्रांसमिट हुआ, किसके पास चला गया वो, डॉटर के पास, ये याद रखो। तो अभी वो जीन कहाँ आया है, डॉटर के पास, किधर से, पापा से, इज क्लियर। अभी ये जो कलर ब्लाइंड डॉटर है, शी इज गोइंग, सॉरी नॉट अ कलर ब्लाइंड, दिस अ कैरियर डॉटर, शी इज गोइंग टू मैरी विद अ नॉर्मल मेल। अगले जनरेशन में क्या होगा, इन अ नेक्स्ट जनरेशन व्हेन दिस कैरियर, when this carrier daughter marry with a normal male, जब ये शादी करेंगे किसके साथ, नॉर्मल मेल के साथ, तो अभी कैरियर का फिनोटाइप क्या था, सॉरी जीनोटाइप क्या था, एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी, और नॉर्मल मेल का जीनोटाइप क्या आएगा, टेल मी द नॉर्मल मेल जीनोटाइप फॉर कलर ब्लाइंडनेस, कैपिटल सी या स्मॉल सी, एक्स कैपिटल सी वाई। अभी both the carrier and normal male they are going to produce a 2 type of gametes, इधर x कैपिटल C, इधर x स्मॉल c, इधर क्या आएगा, x कैपिटल C और y। when the gametes will get a fuse, जब गैमेट फ्यूज होंगे, देखो फर्स्ट गैमेट ऑफ फर्स्ट पैरेंट विद द फर्स्ट गैमेट ऑफ सेकंड पैरेंट, फर्स्ट गैमेट ऑफ फर्स्ट पैरेंट विद द सेकंड गैमेट ऑफ सेकंड पैरेंट, वैसे ही दूसरे गैमेट के साथ, ये ऐसे कर दो। अभी हमको क्या करना है, लिखना है x कैपिटल C, तो इधर आया x कैपिटल C, इधर क्या आएगा, x कैपिटल C y, इधर क्या आएगा, x कैपिटल C x स्मॉल c, इधर आएगा x स्मॉल c y। अभी फिनोटाइप बता दो मेरे को, चलो जल्दी जल्दी, इधर फिनोटाइप क्या आएगा, टेल मी अबाउट फिनोटाइप, दिस इज द F2 जनरेशन, Normal female. या शी इज अ नॉर्मल डॉटर, अभी ये डॉटर ही आएगी ना, डॉटर, ये नॉर्मल सन, ये कैरियर, और ये
कलर ब्लाइंड मेल और सन। इज क्लियर? ये चीज देखो, ऐसा ये तो मैंने यही कर दिया, सारा चला गया क्या? तो if there is a cross between color blind male with a normal female, अगर कलर ब्लाइंड मेल की शादी नॉर्मल फीमेल से होती है तो द जीन फॉल्टी जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस पास टू हिज डॉटर, तो इधर डॉटर क्या बन जाती है? कैरियर बन जाती है। तो वन कैरियर इन F1 जनरेशन विल गेट अ वन कैरियर एंड वन normal male. When this carrier marry with a normal male, so in a F2 generation we'll get a 4 different combination. F2 generation में हमको क्या मिलते हैं? 4 कॉम्बिनेशन मिलते हैं। एक मिलेगा नॉर्मल डॉटर, एक मिलेगा नॉर्मल सन, एक मिलेगी कैरियर और एक क्या मिलेगा? कलर ब्लाइंड मेल। अभी देखो, हमको देखना किधर है? वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट हियर ऑन दिस कलर ब्लाइंड मेल, ऑन दिस कैरियर एंड ऑन दिस कलर ब्लाइंड फादर। नाउ ये जो कलर ब्लाइंडनेस का जीन है दैट इज एक्स स्मॉल सी, ये किसके पास था? इन अ फर्स्ट क्रॉस इट वाज प्रेजेंट इन दिस फादर। अभी ये क्या है? Now the gene faulty gene for colorblindness X small c transmitted from colorblind father to his carrier daughter, तो ये आया डॉटर के पास। Now that faulty gene for colorblindness is transmitted from this daughter to her son। तो एक्चुअल ट्रांसमिशन कैसे हुआ जीन का? तो ट्रांसमिशन ऑफ फॉल्टी जीन टेक्स प्लेस फ्रॉम ग्रैंडफादर to his grandson through his carrier daughter. If the transmission of X-linked gene, the transmission of X-linked gene which is takes place from grandfather to his grandson through his carrier daughter, इसको हम क्या कहेंगे? तो दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इसको हम क्या कहेंगे? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहेंगे। यानी पहले था फादर के पास, फादर से गया बेटी के पास, बेटी से गया बेटे के पास, फिर से आगे क्या होगा? यही अगर कंटिन्यू होगा तो वैसे ही आगे होगा। क्या होगा? इससे जाएगा उसके बेटी के पास, बेटी से बेटे के पास, बेटे से अगेन बेटी के पास, तो लाइक दैट। ये क्या होगा? कंटिन्यूअस, फादर से डॉटर, डॉटर से ग्रैंडसन, ग्रैंडसन से उसके डॉटर के पास, डॉटर से फिर से उसके सन के पास। तो ये जो पैटर्न है ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्स लिंक ट्रेट, it is occur in a zigzag manner, it is occur in a zigzag manner and therefore it is called as crisscross inheritance। it is the following crisscross pattern of inheritance। is it clear? समझ में आ गया? yes or no? चलो आगे। Yes, sir. Yes, sir. अगला एग्जांपल है हीमोफीलिया का। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, अभी हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया इज वन मोर एग्जांपल ऑफ एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर। हीमोफीलिया भी क्या है? इसके ऊपर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों। हीमोफीलिया ये भी क्या है? इट इज सेम लाइक टू दैट ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। तो हीमोफीलिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिसमस डिसीज, इसको क्रिसमस डिसीज भी कहते हैं। फर्स्ट टाइम इट वाज ऑब्जर्व इन वन स्मॉल किड whose name was Christmas, therefore it is called as Christmas disease। it is also called as रॉयल फैमिली डिसीज, रॉयल फैमिली डिसीज। इसको रॉयल फैमिली डिसीज क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज मोस्टली सीन इन द रॉयल फैमिलीज ऑफ इंग्लैंड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लीडर्स डिसीज, इसको और एक नाम क्या है? ब्लीडर्स डिसीज भी है। व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्लीडर डिसीज? दोज इंडिविजुअल्स आर सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया,
दे फेल टू प्रोड्यूस और डेवलप अ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। अभी ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या चाहिए? ब्लड क्लॉटिंग नॉर्मल इंडिविजुअल में क्या होता है? इफ देयर इज एन एनी इंजुरी, अगर कहा इंजुरी होती है तो फ्रॉम दैट इंज्योर साइट वट एवर ब्लड हैज गेट कम आउट, जो ब्लड इंजुरी से बाहर आता है, इंजुरी से जो ब्लड लॉस हो रहा है, दैट ब्लड इमीडिएटली विद इन 2 to 8 minutes ये क्या हो जाता है? इट इज गोइंग टू डेवलप अ क्लॉट, और क्लॉट का कन्वर्जन किस में होता है? स्कार में होता है। इज क्लियर? ये नॉर्मल प्रोसेस है इन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। क्यों हो रहा है? व्हाई द ब्लड अंडरगो क्लॉटिंग और कोगुलेशन? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स दे आर गोइंग टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल। कौन से फैक्टर? फैक्टर 8 and 9। तो फैक्टर 8 and 9 they are playing important role in formation of blood clot at the site of injury। is it clear? तो thrombocytes, platelets, these are the special type of cells present in the blood, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स कहते हैं। तो these platelets are responsible for formation of a blood clot। एवरेज टाइम कितना होता है? 2 to 8 मिनट। बट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ दिस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, अभी ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर क्यों नहीं है? बिकॉज द इंडिविजुअल इज हैविंग अ रेसेसिव जीन फॉर हीमोफीलिया। Those individuals are not able to produce a blood clotting factor 8 and 9, तो they are going to suffer from hemophilia। तो ये हीमोफीलिया क्यों हो रहा है? इट इज डेवलप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेसेसिव एक्स लिंक जीन फॉर हीमोफीलिया। Is it clear? तो in these individuals the blood fail to clot, or if it clot it take a too much longer time। It's clear? तो ये है हीमोफीलिया। तो those individuals are having a recessive gene, those individuals are having a recessive gene for hemophilia। For what? Hemophilia। They are going to suffer from this bleeders disease। इज क्लियर? समझ में आ गया? Yes, sir. चलो। इट इज ऑल्सो गोइंग टू शो सेम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ये भी क्या दिखाता है? इट इज ऑल्सो गोइंग टू शो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस लाइक टू दैट ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। जैसे हमने कलर ब्लाइंडनेस में देखा था वैसे ही क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इधर भी हमको दिखाई देगा। फिर से आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ वन। ये देखो, इफ वी कंसिडर, तो ये ऐसे लिखना है आपको, इफ वी कंसिडर एक्स, अभी हम हीमोफीलिया है, ये भी क्या है? एक्स लिंक ट्रेट है, इसका जीन किधर होगा? ऑन नॉन होमोलॉगस पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम। इफ वी कंसिडर एक्स कैपिटल एच एज अ डोमिनेंट जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर absence of hemophilia, so those individuals are having a dominant genes, they are going to produce the blood clotting factor 8 and 9 properly, तो उनमें क्लॉटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड दोज इंडिविजुअल्स आर हैविंग एक्स एच, तो एक्स एच हमने कंसिडर किया एज अ रेसेसिव जीन, देन रेसेसिव जीन और फॉल्टी जीन, इसको हमने कहा फॉल्टी जीन। तो देन द जीनोटाइप इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, तो जीनोटाइप क्या आएगा? देखो, सेक्स, मेल फीमेल, इधर भी वैसे लिखना है। तो ये एक टेबल बनाना है, टेबल के लिए भी मार्क है। इधर आएगा नॉर्मल, इधर आएगा हीमोफिलिक, और इधर आएगा कैरियर। ऑल आर हैविंग नोटबुक, सबके पास नोटबुक है ना? चलो ये टेबल कंप्लीट करो इन योर नोटबुक Yes, sir. एंड टेल मी द आंसर फास्ट 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 फास्ट। तो नॉर्मल मेल का क्या आएगा जीनोटाइप? बोलो क्या आएगा? नॉर्मल मेल, मेल के पास क्या है? एक्स वाई, इधर एक्स वाई। कैरियर होगा क्या? मेल नहीं होगा, क्योंकि ये भी क्या है? किसका एग्जांपल है? एक्स लिंक्ड ट्रेट का। मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो वो कभी कैरियर नहीं होंगे। तो इधर नॉर्मल मेल के लिए एक्स कैपिटल एच वाई, हीमोफिलिक के लिए एक्स स्मॉल एच वाई, फीमेल के लिए क्या आएगा? नॉर्मल फीमेल एक्स कैपिटल एच, एक्स कैपिटल एच, हीमोफिलिक एक्स स्मॉल एच, एक्स स्मॉल एच। इज इट क्लियर? एंड कैरियर एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, हो गया? गॉट इट? Yes, sir.
अरे समझते का? Yes, sir. चलो आगे चलते हैं. नाउ सेम वी आर गोइंग टू परफॉर्म लाइक टू दैट ऑफ कलर ब्लाइंडनेस. इफ देर इज एन मैरिज बिटवीन हीमोफिलिक मेल की शादी हुई किसके साथ? नॉर्मल फीमेल के साथ. नॉर्मल फीमेल के लिए हमने ये सिंबल यूज किया है और ये है मेल का. तो ये हो गया हमारा फिनोटाइप. इसका जीनोटाइप क्या आएगा? इसका जीनोटाइप आएगा हीमोफिलिक मेल है एक्स स्मॉल एच वाई. इधर क्या आएगा? एक्स कैपिटल एच. अभी दोनों क्या है? सेम है. तो शी इज गोइंग टू प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट एक्स कैपिटल एच. ये गैमेट आया. और मेल इज गोइंग टू प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ गैमेट्स एक्स स्मॉल एच और दूसरा गैमेट में क्या आएगा? वाई क्रोमोसोम. इज क्लियर? व्हेन द गैमेट्स विल गेट अ फ्यूज, जब गैमेट्स फ्यूज होंगे तो इन F1 जनरेशन विल गेट वन कैरियर एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच. तो ये बनी कैरियर और इधर क्या बनेगा? एक्स कैपिटल एच वाई. तो इन F1 जनरेशन विल गेट 50% नॉर्मल मेल इंडिविजुअल्स एंड 50% कैरियर फीमेल. इज क्लियर? तो ये बना नॉर्मल सन. तो अभी भी देखो इधर भी क्या हो रहा है? हियर ऑल्सो द faulty gene for color blindness has get transmitted from a affected or diseased father to his carrier daughter. तो फादर से ट्रांसमिशन कहा हुआ है? The faulty gene has get transmitted or inherited from diseased father to his carrier daughter. X capital H Y. Is it clear? Now both these parents they are going to produce a two type of gametes. अभी ये दो क्यों बनाएगी मम्मी? क्योंकि इसके पास एक डोमिनेंट है और एक रेसिव है. तो एक्स कैपिटल एच ये एक गैमेट एंड एक्स स्मॉल एच ये एक गैमेट. इधर क्या आएगा? एक्स कैपिटल एच एंड वाई. व्हेन दिस गैमेट्स विल गेट अ फ्यूज विल गेट सेम वन नॉर्मल वन कैरियर वन हीमोफिलिक. इज क्लियर? तो इधर क्या आएगा? एक्स कैपिटल एच. ये क्या बनी? नॉर्मल डॉटर. दो एक्स क्रोमोसोम है. इधर क्या आएगा? एक्स कैपिटल एच वाई. ये क्या होगा? ये होगा नॉर्मल सन. इधर क्या होगा? एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच ये होगी कैरियर एंड हियर एक्स स्मॉल एच वाई ये क्या होगा? हीमोफिलिक. मेल और सन. तो देखो इन F2 जनरेशन वी गॉट टू डॉटर. दो डॉटर मिली इसमें से. इन F2 जनरेशन विल गेट टू डॉटर. इसमें से 50% डॉटर क्या है? द 50% daughters are normal, whereas the remaining 50% daughters are carrier. और in the same F2 generation we get a two son. इसमें से दो क्या है? The two sons, sorry, from these two sons, the 50% are what? Normal, and 50% are what? 50% are hemophilic. ये क्या हो गए? हीमोफिलिक हो गए. हियर ऑल्सो द ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज. फॉल्टी जीन मिला था इसको, इसके पास कैरियर को, उसके फादर से. तो फादर से आया फॉल्टी जीन कैरियर के पास, कैरियर से कहा गया ये सन के पास. तो इधर भी क्या होगा? इधर भी दिस इज कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. द ट्रांसमिशन ऑफ फॉल्टी जीन फॉर हीमोफिलिया विच इज प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम. इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम ग्रैंडफादर टू हिज ग्रैंडसन. ग्रैंडफादर से गया ग्रैंडसन के पास, किसके द्वारा? थ्रू हिज कैरियर डॉटर. थ्रू हिज कैरियर डॉटर. तो इसको हम क्या कहेंगे? एक्स एच. ट्रांसमिशन ऑफ रेसेसिव जीन फ्रॉम ग्रैंडफादर टू हिज ग्रैंडसन थ्रू हिज कैरियर डॉटर. तो ये कैरियर डॉटर से ट्रांसमिशन हो रहा है ग्रैंडफादर से ग्रैंडसन की तरफ. तो इसको हम कहेंगे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. इज क्लियर? तो इफ द डेफिनेशन, इसके ऊपर एक मार्क का डेफिनेशन भी आ सकता है मेरे प्यारे बच्चों. डिफाइन
क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. एंड इफ यू आर नॉट हैविंग अ टाइम यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो. अगर लास्ट के 10 सेकंड में पेपर कलेक्ट कर रहे हैं एंड यू हैव टू राइट दिस आंसर, तो अगर ये भी ऐसे लिखोगे तो यू विल गेट अ हाफ मार्क एंड हाफ इज गोइंग टू गेट कन्वर्ट इनटू 1 मार्क. इज इट क्लियर? यस और नो? गॉट इट? Yes, sir. Yes, चलो sir. आगे चलते हैं. अभी देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन. व्हाट्स द टाइम? चलो सेक्स डिटर्मिनेशन की इंट्रोडक्शन तो खत्म कर लेंगे. चलो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्स डिटर्मिनेशन. I already told you in a human being two type of chromosomes are there, autosomes and allosome. Autosome क्या करते हैं? Autosomes are controlling body character and the last pair, that is 23rd pair, consists two sex chromosome, one X and one Y, and these are X and Y chromosome. They are concerned with the determination of sex. तो sex determination किसको कहेंगे? The process or the mechanism by which a sex of individual is established. तो ये क्या है? एक प्रोसेस है मेरे प्यारे बच्चों. इट इज अ प्रोसेस और मैकेनिज्म बाय विच द सेक्स इज एस्टैब्लिश इज कॉल्ड एज सेक्स डिटर्मिनेशन. इसको हम क्या कहेंगे? सेक्स डिटर्मिनेशन कहेंगे. इज इट क्लियर? तो बेसिकली टू टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स आर देयर. इंडिविजुअल्स दो प्रकार के होते हैं. कौन से होते हैं? बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल. दूसरे क्या हो गए? यूनिसेक्सुअल हो गए. यूनिसेक्सुअल इंडिविजुअल्स आर आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? मोनोइशियस. यूनिसेक्सुअल को हम यूनिसेक्सुअल को हम क्या कहेंगे? डायोइशियस कहेंगे. इसको कहेंगे डायोइशियस और इधर क्या कहेंगे? मोनोइशियस. Bisexual individuals, those individuals are having both a sex organ in a body of single individual. अगर एक इंडिविजुअल के बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन है, यानी मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस ओरी दोनों है एक साथ, तो उसको हम क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल. जो हमने 11वीं में पढ़ा था इन द चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. बाइसेक्सुअल फ्लावर्स दे आर आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? हर्माफ्रोडाइट. इसको हम क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट. hermaphrodite यानी बाइसेक्सुअल, हैविंग अ टू सेक्स ऑर्गन. दो सेक्स ऑर्गन इन अ वन इंडिविजुअल. इफ द टू सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ वन इंडिविजुअल, such individuals are called as bisexual individual. And if the only one sex organ present in the body of one individual, तो इसमें क्या होता है? एक मेल होता है और दूसरा क्या होता है? फीमेल होता है. तो वन मेल एंड वन फीमेल. मेल इज हैविंग ओनली मेल सेक्स ऑर्गन, दैट इज अ टेस्टिस, and female is having a only female sex organ, that is a ovary. तो फर्स्ट टाइम दिस सेक्स डिटर्मिनेशन जर्मन बायोलॉजिस्ट, एक जर्मन बायोलॉजिस्ट है मेरे प्यारे बच्चों, वन जर्मन बायोलॉजिस्ट, उसका नाम क्या था? हेनकिंग. तो आप नाम कैसे याद रखोगे? हेनकिंग. यानी हेन यानी एक पंचे चिकन, उनका किंग. हेनकिंग इन द ईयर 1891. तो हेनकिंग वाज अ साइटोलॉजिस्ट हु डिस्कवर फर्स्ट टाइम द एक्स क्रोमोसोम. तो इन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया एक्स क्रोमोसोम. तो इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? ही डिस्कवर्ड फर्स्ट टाइम एक्स क्रोमोसोम. तो हेनकिंग वाज वर्किंग ऑन वन फायरबग, वन इंसेक्ट. तो ही वाज वर्किंग ऑन, ये किसके ऊपर काम कर रहे थे? He was working on one insect that is called as firebug. इसका साइंटिफिक नेम क्या है? Pyrocorys. Pyrocorys. He was working on a firebug, Pyrocorys. So during this work, what he observed? He observed that one chromosome did not take part in the process of meiosis. So when he was working on a firebug, so he observed that one chromosome did not take part in meiosis. Meiosis क्या है? It is a reductional division. It is mainly concerned with the
it is mainly associated with the reproductive cells, so it occur at a time of gamete formation. तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, one chromosome did not take part in the process of meiosis, and due to this strange behavior of this chromosome, he called these chromosome as X element. इन्होंने उसको नाम क्या दिया, X element. Due to this strange behavior of this X chromosome, he called this chromosome as X element. Later on, this X element become X chromosome. So this is about the discovery of X chromosome. आपको ये याद रखनी है, who discovered X chromosome, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. तो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, the first time the X chromosome was discovered by Henking in the year 1891 when he was working on one insect, that is a firebug. तो फायरबग का नाम याद रखो, हेनकिंग का नाम याद रखो, उन्होंने डिस्कवर किया एक्स क्रोमोसोम. इज क्लियर? तो टुडे फॉर टुडेज लेक्चर दिस मच इज इनफ. इज क्लियर?